Hello students, in our last video we had learned the meaning of the noun case and also its types of first two types, the nominative case and the objective case. These two types of cases we had learned in our previous videos. So today we are going to learn remaining two types of nouns cases. Okay, so let us learn about the third type, the vocative case. Here look at on the next page number. So here you have given the vocative case information. Read the first line. When a noun is used for addressing someone, it is said to be in the vocative case. Okay, it means what? जब हम कभी किसी नाउन्स को एड्रेस करते हैं, किसी को ऐसे कॉलिंग करते हैं, ओके, उस टाइम उस वाले नाउन्स को हम वोकेटिव केस बोलते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल हियर. फर्स्ट एग्जांपल, कम ऑन गर्ल्स. हियर we addressing for the girls. Okay, so these girls, this is our vocative case noun. Okay, because here come on, these words address to the girls. So in this sentence, girls, this is a noun and this noun is called vocative case. Also same like this, look at the second sentence. Come into the kitchen, Mohan. What is the sentence? कम इन टू द किचन. फॉर हु, किसको बुलाया है कम इन टू द किचन? मोहन को. इट मीन्स इन दिस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है हमारा कम इन टू द किचन, दिस सेंटेंस इज कॉलिंग, दिस सेंटेंस इज ऑल एड्रेसिंग फॉर द मोहन. ओके, इट मीन्स इन दिस सेंटेंस मोहन, दिस इज अ वोकेटिव केस बिकॉज दिस ऑल वर्ड्स आर एड्रेसिंग फॉर द समवन. इट मीन्स मोहन. सो हियर वी कैन सी द वोकेटिव केस नाउन. In the third sentence, you can also see here, finish your milk, dear Romy. It means in this sentence, यहाँ पे जो रोमी नाम की जो लड़की है, उस लड़की को उसकी मदर बोल रही है कि दूध फिनिश करो, दूध जल्दी से फिनिश करो रोमी. इस तरह से उसकी मम्मी उसको ऑर्डर दे रही है, बोल रही है. इट मीन्स फिनिश योर मिल्क, डियर रोमी. So in this sentence, this Romy, this is our noun and this noun is called vocative case. Okay students, because these words is addressing for someone. It means finish your milk, these words is addressing to Romy. So the Romy is our vocative case noun. Okay, so let us see the fourth example. Oh God, where are you? देखो यहाँ पे भी कैसे हैं, ओ गॉड वेर आर यू. हम कभी जब परेशान में होते हैं या फिर हमें कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती है तो हम क्या बोलते हैं, ओ गॉड वेर आर यू, है ना. अभी देखो इस सेंटेंस में भी क्या है, वेयर आर यू. ये जो वर्ड यूज़ किए हैं, ये जो सेंटेंस हमारा रेडी किया है वो सेंटेंस किसके लिए है, गॉड के लिए है. इट मीन्स इन दिस सेंटेंस, ओ गॉड, दिस इज अवर नाउन एंड दिस नाउन इज कॉल्ड वोकेटिव केस. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे जो ये रिमेनिंग सेंटेंस है वो सेंटेंस एड्रेस कर रहा है किसको, गॉड को, कि ओ गॉड वेयर आर यू. ये जो एड्रेसिंग वर्ड है, एड्रेसिंग समवन्स, इट मीन्स ओ गॉड, दिस वर्ड इज एड्रेसिंग दिस ऑल इन दिस सेंटेंसेस. सो ओ गॉड इज अ vocative case. Also look at the fifth sentence. Brothers, sisters, countrymen, lend me your ears. It means lend me your ears. यहाँ पे भी अभी ये जो सेंटेंस है lend me your ears, ये सेंटेंस किसके लिए एड्रेस किया गया है, brothers, sisters and countrymen. This is all our nouns and these all nouns is addressing these words for addressing these nouns. So these all nouns is called vocative case. Okay students, in simple way here you have to understand that जब भी किसी सेंटेंस में किसी समवन को, मतलब किसी चीज़ को या फिर किसी नाउन्स को एड्रेस किया हुआ आपको दिखाई देगा तो उस टाइम वह वाला नाउन जो होगा वो हमारा वोकेटिव केस होगा. ओके, सो लेट वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. व्हेन द फॉर्म ऑफ अ नाउन इज चेंज्ड टू शो ओनरशिप और पोजेशन, इट इज कॉल्ड और इट इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस. In those lines we are going to learn about the fourth types of noun case, that is called possessive case. And what is meant by possessive case, how do we identify which are the possessive case? Okay, so let us see here. When the form of a noun, जब भी किसी noun का form is changed to show ownership or position, it means जब भी किसी सेंटेंस में जो नाउन होगा उसका चेंज
उस नाउन का ओनरशिप दिखाने के लिए या फिर उसका पोजीशन दिखाने के लिए किया जाएगा, तो उस सेंटेंस में वह नाउन पॉजेसिव केस में आएगा। ओके, इट मीन्स व्हाट कि किसी भी नाउन में अगर वो उस नाउन के बारे में वो किसी भी चीज़ है तो वो उसी नाउन की है, ऐसे उसका पोजीशन दिखाना है, उसका अधिकार दिखाने के लिए उस वाले नाउन को हम पॉजेसिव केस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे हैंड में आपको एक पेंसिल दिखाई दे रही है। अभी मैं इस पेंसिल को क्या बोलूँगी, ये मेरी पेंसिल है। ओके, पर ये सिंपल वे में हो गया कि ये मेरी पेंसिल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ ये मेरी पेंसिल है, ये इतना ही आपको समझ में आएगा। पर इसी पेंसिल को अगर मैंने दूसरे वर्ड्स में कहा कि ये सिर्फ मेरी पेंसिल है, इसमें दूसरे किसी का भी हक नहीं है, या फिर इस पेंसिल को दूसरा कोई भी ले नहीं सकता, ये सिर्फ मेरी ही पेंसिल है, इस तरह का जो उस पेंसिल पे किसका अधिकार हुआ, सिर्फ मेरा अधिकार होगा इस पेंसिल पे, दूसरा इस पेंसिल को कोई ले नहीं सकेगा। इट मीन्स दिस इज़ ओनली माई पेंसिल। इन दिस वे, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन्स के बारे में सिर्फ वो किसी भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है और वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ वो उसी नाउन्स की है, ऐसे अगर वहाँ पे एक्सप्लेन किया होगा, शो ऑफ किया होगा, तो उस वाले सेंटेंस के नाउन को हम बोलेंगे पॉजेसिव केस। ओके, so look at the next lines. The possessive case of a noun is usually formed by adding same like this. It is called apostrophe yes. This is called apostrophe yes. Apostrophe yes in bracket you have given here to the noun. It means the possessive case of the noun is usually formed by adding yes. It means apostrophe yes to the noun. पॉजेसिव केस में जो भी आपको नाउन दिया गया होता है उस नाउन के आगे हमेशा एपोस्ट्रोफी यस ऐसे दिया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी इन द एग्जाम्पल्स यू हैव गिवन बिलो, सेम लाइक दिस। यहाँ पे जो आपको एपोस्ट्रोफी यस लगाया हुआ दिया है, तो कभी भी पॉजेसिव केस जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो इस तरह का एपोस्ट्रोफी यस जिस नाउन्स को आपको लगाया होगा वो वाला नाउन हमारा हमेशा के लिए याद रखना है कि वो सेंटेंस का नाउन हमारा पॉजेसिव केस में आएगा, बिकॉज वी सी हियर द एपोस्ट्रोफी यस। ओके, इट मीन्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हमारा पॉजेसिव केस होगा, पॉजेसिव केस का नाउन होगा, तो उस नाउन के आगे आपको इस तरह का एपोस्ट्रोफी यस लगाया हुआ दिखेगा। और बट इन सम केसेस ओनली द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड एंड द लेटर्स यस इज ओमिटेड। कभी कभी क्या होगा कि सिर्फ ये एपोस्ट्रोफी का जो साइन दिया है आपको यहाँ पे, यू कैन सी हियर दिस साइन इज यूज्ड। कभी कभी सेंटेंस में सिर्फ इतना साइन दिखाता है कि सिर्फ एपोस्ट्रोफी दिखता है, पर जो लेटर यस लगाते हैं ना, वो यस वाला लेटर आपको दिखाई नहीं देता, वो क्या होता है, ओमिटेड होता है, वो हिडन होता है। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड एपोस्ट्रोफी यस मीन्स पॉजेसिव केस। और सिर्फ एपोस्ट्रोफी भी होगा तो वो भी हमारा सेंटेंस का नाउन पॉजेसिव केस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस पॉजेसिव केसेस में हमें एक तो अब हमारा आइडेंटिफाई हो गया कि एपोस्ट्रोफी यस आएगा तो वो हमारा पॉजेसिव केस होगा। बट हमें कभी कभी क्या करना है, इस सेंटेंस के पॉजेसिव केस को फाइंड आउट करने के लिए WHOSE हुज, ये जो हमारा क्वेश्चन का WH वर्ड है, उस WH वर्ड से हमें उस सेंटेंस को क्वेश्चन आस्क करना पड़ेगा। ओके, जब हम हुज से क्वेश्चन आस्क करेंगे तो उसका हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर भी हमारा पॉजेसिव केस होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी सपोज देखो मैंने आपको ये पेंसिल मेरी है ऐसे बताया है, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, दिस इज़ माई पेंसिल। ओके, दिस इज़ माई पेंसिल। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हुज से कैसे क्वेश्चन हम आस्क करेंगे, हुज पेंसिल इज़ दिस। हमें से क्लास में भी कभी किसी की पेंसिल अगर गुम हो जाती है तो हम पूछते हैं ना क्लास में, ये किसकी पेंसिल है, इट मीन्स हुज पेंसिल इज़ दिस। तो योर फ्रेंड्स इज से टू द दिस इज़ माई पेंसिल। ओके, सेम लाइक दिस यू हैव टू आस्क क्वेश्चन विथ हुज वर्ड। ओके, इट मीन्स in any sentence when you are going to ask WH word whose question, that time you get the possessive case answer. Okay, it means noun that is possessive case. So look at the following sentence or following rules by using apostrophe s. अभी आपको ये समझ में आया कि apostrophe s जहाँ पे होगा वो वाला हमारा जो नाउन होगा वो possessive case में होगा। अभी इस तरह के जो एपोस्ट्रोफी यस है वो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें आगे यहाँ पे दिए हैं। लर्न द फॉलोइंग रूल्स। सो लेट अस वी विल लर्न नाउ। लेट अस सी हियर, फर्स्ट रूल इज गिवन फॉर यू हियर। एपोस्ट्रोफी यस इज यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन्स
and plural nouns not ending in yes. It means here, so you can see some of the examples you have given here. Left side examples you have see, that is a singular nouns, that you can see here singular nouns, and right side here given for you plural nouns, singular nouns and plural nouns. So here we can see a man's job. मैन है कि यहाँ पे सिर्फ नहीं, मैन्स जॉब है, मतलब उस मैन का, उस आदमी का काम, ओके, उसी का ही काम है। इस यहाँ से यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यस लगा के उसमें आपको उस सिंगुलर फॉर्म को एपोस्ट्रॉफी यस लगाने के बाद वहाँ पे आपको ये जो नाउन दिखाई देता है वो पॉजेसिव केस में आता है। अ मैन्स जॉब, सेम लाइक मेन्स वर्क, मेन्स वर्क, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी यस है। अ वुमेन्स लव, नेक्स्ट वुमेन्स पार्लर, women's parlor, a child's voice, okay. In this way singular nouns we can use here apostrophe yes. Also plural nouns you can see here, the children's room, the children's room मतलब उन्हीं children's की रूम है वो, दूसरे किसी की भी नहीं। सेम लाइक दिस the driver's seat, ये सीट जो आपको दिखाई दे रही है ना, किसी भी कार में सीट जो दिखाई देती है वो ड्राइवर्स की ही है, ऐसे वहाँ पे शो ऑफ किया है, मतलब वह जो सीट है वो सिर्फ ड्राइवर्स की सीट है, उसकी जगह पे कोई दूसरा बैठ नहीं सकता। इट मीन्स ड्राइवर का ही उस जगह पे अधिकार है। इस तरह का मीनिंग इस एपोस्ट्रॉफी यस से उस सेंटेंस का होता है। इट मीन्स द ड्राइवर्स सीट। ऑल्सो द हॉर्स माउथ, द हॉर्स माउथ, ओके। द बुल्स हॉर्न्स, द बुल्स हॉर्न्स। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स मीन्स सिर्फ इंडियाज़ का ही है, इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स। In this way you have see here that singular nouns and plural nouns that has a apostrophe yes forms, okay. In this way first rule we have seen here. Also we can see here second rule of the apostrophe yes. Now here you can see the second rule, only the apostrophe in bracket you can see its sign, apostrophe is sign. Only the apostrophe is used with plural nouns ending in yes. कभी कभी क्या होता है, देखो जो हम एपोस्ट्रॉफी यस लगाते हैं ना, तो कभी कभी हमारा जो प्लूरल नाउंस होता है, प्लूरल नाउंस जब आता है तो उस नाउंस के बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। लुक एट द एग्जांपल्स हियर, द गर्ल्स स्कूल, यहाँ पे गर्ल्स किस तरह से लिखा है, देखो एपोस्ट्रॉफी, पहले एपोस्ट्रॉफी और बाद में यस, ऐसे है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे पहले ही गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे ये जो गर्ल्स है, ये जो क्या है, वो हमारा जो नाउन है वो प्लूरल नाउन है। गर्ल है क्या? नहीं, गर्ल्स मतलब बहुत सारे गर्ल्स, उन गर्ल्स का स्कूल है वो। तो ऐसे प्लूरल फॉर्म्स के जो नाउन्स आएंगे तो उन नाउन्स के आगे डबल यस कैसे लिखेंगे? हम नहीं लिख सकते हैं ना, एपोस्ट्रॉफी लगाओ फिर यस लगाओ, मतलब डबल यस होता है। तो इस तरह के प्लूरल नाउन्स के आगे जब भी यस लगता है ऑलरेडी, तो उसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रॉफी साइन दिया जाता है और उसी को हम पॉजेसिव केस नाउन्स बोलते हैं, ओके। अ गर्ल्स स्कूल, same like the next example you can see here, the students hostel, the students hostel. The Sharma's car, the Sharma's car. The sparrow's nest, the sparrow's nest, okay. It means you have seen all the nouns are in plural forms, and in plural forms noun it has already given yes. So when we are going to write down apostrophe yes, that time just you can write only apostrophe, not yes, okay. Look at the third rules. Now here in third rules you can see the nouns or names ending in yes, the nouns or names ending in yes usually take in only the apostrophe. अभी यहाँ पे क्या बताया है कि कभी कभी इस तरह के नाउन्स हमारे सामने आते हैं कि ऑलरेडी उनको यस वहाँ पे होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में भी नहीं होते, पर उनके नाम में ही ऐसा ऑलरेडी यस वहाँ पे लास्ट एंडिंग में यस आता है, तो उसके बाद हम फिर डबल यस नहीं लगा सकते। इसलिए इस वाले नाउन्स के आगे भी हम सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का साइन लगा देते हैं, ना कि यस लगाना, ओके। लुक एट द एग्जाम्पल, आर्किमेड्स लॉ। सेकेंड, सोक्रेटिस फॉलोअर्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो सोक्रेटिस वर्ड है या फिर ये आर्किमेड्स जो वर्ड है उसके लास्ट में यस ऑलरेडी आया है, मतलब सोक्रेटिस इसका जो नाउन का नेम है उस नेम के आगे ऑलरेडी यस है, तो उसके आगे हम फिर से एपोस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते, तो क्या करते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का साइन लगा देते हैं। इट मीन्स इन दिस वे वी कैन ऑल्सो सी द सम ऑफ द नाउन्स इन आवर पॉजेसिव केसेस, ओके।
You have to remember that only apostrophe, this is also our possessive case noun. Okay, let us see the next example. Pierce so. Pierce so. Also Sophocles plays. In this way you have see the already yes nouns ending with yes, that time we take only the apostrophe. Okay, also you can see the next rule. In case of compound words, in case of compound words, the last word takes the yes. The last word takes the yes. It means कंपाउंड टाइप्स के जो वर्ड्स आते हैं, कंपाउंड वर्ड्स जब आते हैं तो उस टाइम में भी द लास्ट वर्ड टेक्स द यस. उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसके आगे हम एपोस्ट्रोफी यस लगा देते हैं. ओके, कंपाउंड वर्ड्स मतलब कैसे, यहाँ पे एग्जांपल देखो. द स्कूल टीचर्स जॉब. द स्कूल टीचर्स जॉब मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स है वो सिर्फ स्कूल्स जॉब ऐसे नहीं ना, स्कूल का टीचर है और उस टीचर्स का जॉब है. मतलब एक के आगे दूसरा नाउन, दूसरे के आगे तीसरा नाउन, ऐसे जब नाउन्स एक साथ आते हैं तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. सो हियर वी कैन सी द स्कूल टीचर्स जॉब. मतलब यहाँ पे टीचर्स, यहाँ पे जो दूसरा नाउन है हमारा, स्कूल भी नाउन होता है पर स्कूल के बारे में जो भी दूसरा नाउन बताया गया है यहाँ पे टीचर, तो उस टीचर्स को हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है. ओके, ना कि यहाँ पे स्कूल को लगाना. यहाँ पे स्कूल को नहीं लगाएंगे तो उसके आगे वाला जो नाउन होगा उसके आगे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के वो वाला नाउन हमारा पॉसेसिव केस में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, ऑल्सो यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. माई ब्रदर इन लॉज हाउस. हियर वी कैन सी माई ब्रदर इन लॉज हाउस. यहाँ पे अभी जो आपको दिया है कंपाउंड वर्ड्स है, ये भी माई ब्रदर ये हुआ हमारा फर्स्ट वर्ड, देन इन, देन लॉ, इस तरह के जो एक के साथ एक दूसरे नाउन्स हमारे कंपाउंड वर्ड्स एक साथ आते हैं तो उस वाले नाउन्स के लास्ट वाला जो वर्ड्स होता है उसके वर्ड्स के आगे हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. सेम लाइक दिस. ओके, माई ब्रदर इन लॉज हाउस. यहाँ पे ऐसे नहीं करना है माई ब्रदर्स इन लॉ हाउस, नहीं, ब्रदर को एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना. तो हमें कहाँ पे लगाना है, जो लास्ट वाला वर्ड होगा उस वर्ड्स के आगे हमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के वो वाला नाउन हमारा पॉसेसिव केस में हमें राइट डाउन करना है. ओके, माई ब्रदर्स इन लॉज हाउस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द नेक्स्ट रूल. इन केस ऑफ अ नाउन और अ टाइटल containing several words, that time also we use yes is used only with the last word. कभी कभी क्या होता है हमारा कुछ ऐसे टाइटल, हम स्टोरी को टाइटल या फिर किसी भी मॉरल के टाइटल्स जो होते हैं उस वाले टाइटल्स के टाइम उस टाइटल्स का जो लास्ट वर्ड होता है उस लास्ट वर्ड को ही हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर द किंग ऑफ भूटान्स विजिट. अभी ये वाला हमारा पूरा एक टाइटल है तो इस टाइटल के फर्स्ट वर्ड को हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है क्या, नहीं. तो यहाँ पे भी जो लास्ट वर्ड होता है ना उस लास्ट वर्ड को हम एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं. बट लास्ट वर्ड हुज नाउन्स, नाउन का लास्ट वर्ड. ओके, यू कैन अंडरस्टैंड हियर, नॉट विजिट. विजिट दिस इज अवर लास्ट सेंटेंस वर्ड, बट वी कैन फाइंड आउट द नाउन, ऑल द नाउन एंड दिस ऑल नाउन्स last word we can put the apostrophe s. Okay, it means the king of Bhutan's visit. Same like this you can see here second sentence, the prime minister of let us read again. The prime minister of Mauritius's speech. Okay, it means the prime minister किसका, Mauritius's speech, उसका speech. तो यहाँ पे ये जो स्पीच है वो वाला वर्ड अलग आता है और हमारा इस सेंटेंस का जो नाउन है वो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस. इट मीन्स ये जो लास्ट का वर्ड है उस वर्ड्स के आगे हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया. इट मीन्स द टाइटल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इट हैज़ ऑल्सो टेक अ एपोस्ट्रोफी एस विथ अ लास्ट वर्ड. ओके, नेक्स्ट लुक एट ऑन द नेक्स्ट पेज. व्हेन टू नाउन्स आर इन apposition, when two nouns are in apposition, apostrophe s is added to the appositive, not to the noun. अभी इस सेंटेंस में देखो जब भी टू नाउन्स आते हैं वो किस तरह से अपोजिशन के, मतलब ऑपोजिट के जैसे, अपोजिशन के जैसे जब यहाँ पे टू नाउन्स आते हैं तो उस टाइम से जो is added to the appositive, not to the noun. It means here also we can see the apostrophe s to the appositive noun, not the noun. Okay, that is, see the example, that is Tagore, the poet's house. तो यहाँ पे बताया है कि that is Tagore, this is our noun also, Tagore, that is Tagore. Okay, तो here एपोस्ट्रोफी एस इस नाउन को नहीं लगाया तो जो एपोजिटिव वाला नाउन है उस नाउन को हमने एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगाया है. द पोएट्स हाउस,
यहाँ पे आप देख रहे हो पोएट्स को यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है। इट मीन्स एपोजिटिव वाला जो हमारा नाउन आता है उस नाउन को हम पॉजेसिव केस बोलते हैं। यहाँ पे जो दूसरा नाउन है वो नाउन पॉजेसिव केस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी दो टाइप के नाउन आए हैं अपोजिशन के टाइप के, तो वहाँ पे जो एपोजिटिव वाला वर्ड होगा वो वाला जो नाउन होगा उसको हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ओके, सेम लाइक यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई ड्रो माई बेस्ट फ्रेंड बेन्स कार। मैंने क्या किया है, बेस्ट फ्रेंड की कार चलाई है, पर किसकी, बेन्स कार। इस तरह से मतलब यहाँ पे भी आई ड्रो माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे भी एक नाउन आता है और यहाँ पे भी एक नाउन आता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑपोजिटिव वाला जो एपोजिटिव वाला जो नाउन है उस नाउन को हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। सो यू कैन सी हियर बेन्स कार, पोएट्स हाउस। In this way you can see the appositive noun and it is add to be possessive case. Okay, now look at the next rule. When two nouns are closely connected, that time apostrophe s is used with the second noun. यहाँ पे अभी आपको बताया है कि जब टू नाउन्स आते हैं किस तरह के, जो क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, उस टाइम में दूसरा वाला जो नाउन होता है हमारा, उस नाउन को हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। कैसे, लुक एट द सेंटेंस हियर। फर्स्ट सेंटेंस, करीम एंड सलीम्स बेकरी। अभी यहाँ पे इस सेंटेंस में आपको दो नाउन हैं, करीम एंड सलीम्स। ओके, तो इस तरह के जो क्लोजली है, क्लोजली क्यों है कि तो यहाँ पे उन दोनों की बेकरी है, ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग है करीम और सलीम की बेकरी है। तो इसमें फर्स्ट जो नाउन है उस नाउन को हमने एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया है, और जो सेकेंड नाउन है उसको हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। इस तरह के जो क्लोजली कनेक्टेड टू नाउन्स आते हैं तो उस टाइम सेकेंड वाला जो नाउन होता है उसको हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। It means Karim and Salim's bakery. Also see here William and Mary's region. William and Mary's region. When two nouns are closely connected, that time second noun has a apostrophe s. Okay. Also see the last and next rule of the apostrophe s. When two nouns are connected by and, that time add s or apostrophe s to each of the nouns if they simply imply separate positions. It means here you can see, look at the first example, that time you can understand. Okay, Raja Rao's and R.K. Narayana's novels. You can see here Raja Roy's, this is our first noun, and R.K. Narayana's, this is our second noun. It means when two nouns are connected by and से ये दो नाउन्स क्या हो गए हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। कौन से टू नाउन, राजा राव और आर के नारायण। ये जो दो नाउन है वो किससे कनेक्टेड है, एंड से। दैट टाइम एड एपोस्ट्रोफी एस टू ईच ऑफ द नाउन्स इफ दे इम्प्लाई सेपरेट पोजिशन। जब उस दोनों भी नाउन सेपरेट पोजिशन दिखाते हैं या फिर उनका सेपरेटली नाम आता है, नाम और सरनेम, नेम और सरनेम, इस तरह के जो नाउन्स आपको दिखाई देते तो उसके लास्ट वाला जो नाउन्स का जो सेपरेट वर्ड होता है, सरनेम होता है, उसको हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। यू कैन सी हियर राजा राउज, यहाँ पे भी लगाया है, एंड आर के नारायणाज, यहाँ पे भी लगाया है, नॉवेल्स, राजा राउज एंड आर के नारायणाज नॉवेल्स, इस तरह से। ओके, ऑल्सो यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, गोल्डस्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम। यहाँ पे भी आपको उसका यहाँ पे क्या बताया है कि इफ़ दे इम्प्लाई सेपरेट पोजिशन। अभी यहाँ पे जो टू नाउन्स है, गोल्डस्मिथ एंड कॉपर्स, ये जो टू नाउन्स है, वेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय एंड। अभी यहाँ पे भी दो नाउन्स है, तो वो नाउन्स का किससे कनेक्टेड है, दिस एंड वर्ड से। इस एंड वर्ड ने ये दो नाउन कनेक्ट किए हैं, पर अभी एपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाया है, क्योंकि इफ़ दे इम्प्लाई सेपरेट पोजिशन, इनकी जो पोजिशन है ना वो दोनों की अलग अलग पोजिशन है, इसलिए इसका भी पोएम्स है, इसका भी पोएम्स है, पर गोल्डस्मिथ्स इस यहाँ पे भी उसका भी पोएम है। इस तरह से उसका सेपरेटली पोजीशन दिखाने के लिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है, इसलिए गोल्डस्मिथ्स पोएम्स एंड कॉपर्स पोएम्स। इट मीन्स हियर वी कैन सी टू नाउन, बोथ टू नाउन्स हैज़ अ एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रूल बताता है वो इफ़ दे इम्प्लाई सेपरेट पोजीशन, इनका सेपरेट पोजीशन, उनका खुद का अधिकार सेपरेटली उनको शो ऑफ करना है, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस दोनों नाउन्स के आगे हमने लगाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैड लर्न सम ऑफ द रूल्स ऑफ द पॉजेसिव केसेस. Okay, how many rules are there? 1, 2, 3, 4, 5. On the next page also 6, 7 and 8. There are 8 rules. Where do we when and where, how do we use this apostrophe s in the sentence, and how do we identify the
which are the possessive cases nouns. Okay, so you can learn now. We had learned here, and I hope you all understand this all the lesson. It means the noun case, it's 4 types: the nominative case, objective case, vocative case and possessive case, and also possessive cases apostrophe s rules. Okay, now here you have given test. It means exercise yourself. Now here students, you have given two main questions for solve at your home. Okay, you have to solve these all the questions on the paper or in your notebook. Okay, no problem. So look at the first sentence. First question, mention the case of the underlined nouns in the following sentences. तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उस सेंटेंस में जो आपके नाउन्स है वो नाउन्स कौन से टाइप का है वो आपको आइडेंटिफाई करना है, और उसके आगे आपको उस नाउन्स के आगे अंडरलाइन करके उसका जो टाइप्स है वो टाइप आपको लिखना है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी द फर्स्ट सेंटेंस, द किंग किल्ड द लॉयन. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है तो उसमें 2 नाउन्स आते हैं. कौन से? द किंग, दिस इज आवर फर्स्ट नाउन, एंड द लॉयन, दिस इज आवर सेकेंड नाउन. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई विच आर दोज नाउन्स. ये कौन से नाउन के टाइप्स है? पॉजेसिव केस के नाउन है या फिर वोकेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है. ये आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके आगे आपको लिखना है. अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो द किंग आपको दिया है वो क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है ना, मतलब यहाँ पे उसका सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज किया है, इसलिए द किंग दिस इज आवर नॉमिनेटिव केस नाउन. ओके, एंड द लॉयन दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ब. सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द sentences. In this way you have to underline the king and the lion and write its types of cases. Okay, in this way you have to solve this first question. Next, in the second sentence, here you have given change into the possessive case. यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसके आपको चेंज करना है. किसमें? पॉजेसिव केस में चेंज करना है. द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन. हियर यहाँ पे द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन, ऐसे इस तरह से एक सेंटेंस दिया है तो उसका हमें पॉजेसिव केस कैसे कैसे बनाना है? मिस्टर बीन स्माइल. यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है. कहाँ पे? बीन्स को. यहाँ पे मीनिंग देखो अभी, द स्माइल ऑफ मिस्टर बीन, मिस्टर बीन की स्माइल. ओके, इस तरह से इसका मीनिंग होता है. पर यहाँ पे देखो अभी उसका जो पॉजेसिव केस बनाया है, मिस्टर बीन स्माइल. मिस्टर बीन्स की ही स्माइल है ये, दूसरी किसी की भी नहीं. मिस्टर बीन स्माइल, उसी की ही स्माइल होगी, दूसरे किसी की भी नहीं. इस तरह से पॉजेसिव केस आपको रेडी करने हैं इस सारे सेंटेंस के. नॉट ऑन दिस दैट 4 बट ऑल्सो यू हैव सीन ऑन द नेक्स्ट पेज ऑल्सो. Look at here on the next page. Total you have given 20 sentence. Look the question number 2, 1 to 4 sentence you have given, and on the next page you have given also up to 20 sentences, and you have changed into these all the sentences into possessive cases. Okay students, hopes you understand today's lesson, and I also hope you had done these all the question and answers at your home study. Okay, bye.